Today we discuss about the English grammar. Generally this English grammar is very useful in our NDA exams, SSC exams, UPSC exams, HSSC exams, all types of examination. Generally English is mandatory. Without English grammar we cannot attempt any examination. This is a part of exam. So we discuss today about tenses. Tenses. Tenses are mainly of four kinds. One is indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. And tenses tell us about time. There are three times: present, past, and future. So tenses tell us about time, how the action taking place, how the action occurred, in what time, at what time. So tenses tell us about time. So there are 3 times and 4 tenses. Just present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. They are part of 3 into 4, 12 parts. But there are 2 more parts also in language, in English grammar, that is simple present and simple past. Simple present and simple past. There are 14 parts of tenses. Generally these tenses asked in the HSCC examination, mainly NDA, UPSC exam, SSC, CPOs, CHSL, means generally all kinds of examination, these such type of questions are generally asked in the examinations. Now I start about simple present. Simple present means use of is MR. use of means क्रिया के अंत में है, हूँ, हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, हूँ, हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. जैसे वह एक लड़का है, he is a boy. Because the structure of grammar generally use SVO, subject, verb, object. वह एक लड़का है, हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं. We are 5 brothers and sisters. Generally use are. Now this is simple present tense. Now present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense हिंदी में
क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Tense is the backbone of the language. Without tense, we cannot frame any sentence. Generally, sentence is bound with the verb, subject and object. Present indefinite tense, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है. ता है, ती है, ते है. This is use is singular verb, subject, singular subject, singular verb and plural subject, plural verb. This is the structure of grammar. Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. Generally, all verbs are considered as plural. All verbs, action called verb, all verbs generally called plurals. Just like read is plural and reads is singular. This is plural. Just like write is plural and writes is singular. So generally we can use singular subject, singular verb and plural subject, plural verb. Singular subject, he, she, it, any name, any noun. That is singular subject. Always use singular verb. Just he goes, we go, she writes, she writes, they sing, because this is plural, this is plural. तो ये इस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है. एक जनरल एक डिक्टिम है, एक मैक्सिम है लैंग्वेज में कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है. सो जनरली हाउ वी डिफाइंड दिस इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस समटाइम इन HSC एग्जाम्स ये जनरली पूछा जाता है. SSC के एग्जाम में एक सेंटेंस विल बी रिटन इन द एग्जामिनेशन और उसे नीचे पूछा जाता है फाइंड आउट द टेंस, रिकॉग्नाइज द टेंस. टेंस की पहचान करिए ये कौन सा टेंस है. कई बार हम देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो हमें उसके एक्शन पर जाना होता है, उसकी वर्ब को देखना होता है. सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, वर्ब से देखना पड़ता है क्योंकि जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है उसके साथ, तो समझो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और प्लूरल वर्ब है सब्जेक्ट के साथ, तो वो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. मेनली और भी डेफिनेशन है इस पे पहचानने के लिए. हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे हम, जनरली वी फाइंड ऑफनली, जनरली, रेयरली, seldom, once a week, twice a week, once a week, twice a week, thrice a week, always,
always, daily, here, there, जैसे they are everywhere, everywhere, it means everywhere, everywhere means God live everywhere, God live everywhere, just option lives, live, living, none. तो God is singular, generally verb is singular, lives. तो आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. God lives everywhere. So while using simple present tense means present infinite tense, we can generally find such words as recognition of the tense: oftenly, generally, rarely, seldom, once a week, twice a week, always, daily, here, there, everywhere, anywhere, nowhere, like this. So this is simple present tense. This tense generally is very difficult tense because sometimes we cannot understand about the tense. Sometimes while speaking we have to face some problem because we cannot find singular verb, we cannot find a plural verb, we don't know what is plural, what is singular. It means all verbs are generally considered plural verbs. Generally considered plural verbs. We can change into singular. Just like read is base form and reads singular form, read plural form, read, 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 read. Read, read, just like read, read, just like present, past, past participle, participle, present participle, present, past, past participle, present participle, and base form is singular form. Singular form. Present form, this is ate, ate, eaten, eating, and eats. These are 5 types of verb. 5 types: eat, present; ate, past; eating, eaten, past participle; eating, present participle; eats, singular form. Singular form of the verb. Singular form of the verb. So these verbs generally we read out just like call, called, called, calling, calls. Write, wrote, written. Writing, writes. These are 5 types. Means present form, past form, past participle form, present participle form, and singular form. Generally in HSSC एग्ज़ाम्स, आपको पता है कि HSC के एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से अंग्रेजी को पूछा जाता है. बहुत ही माइनर तरीके से अंग्रेजी को पूछा जाता है. अंग्रेजी को हम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए इस भाषा को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है. समझाने में मुश्किल नहीं है, समझने में मुश्किल आती है. टेंसेस बैकबोन है. टेंसेस के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं. और टेंसेस जनरली हरियाणा सरकार के जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में पूछा जाता है. कई बार सेंटेंस लिख देता है, कई बार वर्ब पूछ लेता है, और कई बार उस टेंस के बारे में एक सेंटेंस लिख करके पूछेगा कि भाई कौन सा टेंस है. एक सेंटेंस लिखा जाता है कि द मैंगोज किल्स ए स्नेक, तो ये कौन सा टेंस है? किल्स ए स्नेक. हमें किल्स पे जाना है. किल्स पे जाना है. किल्स मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब जनरली
जिसके साथ एस लगता है, क्योंकि प्लूरल से सिंगुलर बन सकता है। राइट सिंगुलर है, राइट प्लूरल है, राइट सिंगुलर है, एस लगा दिया। तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके पीछे ई हो, एस एच हो, सी एच हो, वाई हो, वाई को हटाकर आई एस में चेंज कर दिया जाता है, तो सी एच है तो ई एस लगा दिया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे जनरली कॉन्सोनेंट से ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है कोई वर्ब, तो उसके साथ केवल एस से बात बन जाती है। जैसे ईट है, ईट्स एस से बात बन गई है। लेकिन फ्लाई, वाई चेंज टू आई एस तो फ्लाइज हो जाता है, फ्लाइज। ऐसे कैरी है, कैरी, वाई चेंज इन टू आई बिकॉज वाई इज इक्वल टू आई, वाई इज इक्वल टू आई। फ्लाई, फ्लाई, एफ एल आई, फ्लाई, फ्लाइज। इस तरह से हम वर्ब को बना सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी और वेरी इजी टॉपिक। टेंसेस इज़ वेरी जनरली इजी टॉपिक और इस ऑफनली आस्क इन द एग्जामिनेशन। मेनली हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में टेंस का एक सेंटेंस, दो सेंटेंस ज़रूर आता है। चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एएनएम जीएनएम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो और चाहे वो एससीएस का एग्ज़ाम हो, सभी में इंग्लिश पूछी जाती है। इसलिए टेंसेस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे। यू फाइंड सच वर्ड्स, जैसे ऑफनली आता है, जनरली आता है, रेयरली आता है, वन से वीक है, ट्वाइस से वीक है, ऑलवेज है, डेली है, हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है। तो जनरली ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। कई बार सच्ची बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमेशा जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिट है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पाई जाती है। तो हैबिचुअल फैक्ट हो, जैसे टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन, टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बी की फॉर्म में इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट मीन्स बी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सिंगुलर फॉर्म है इज, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। बहुत बार एग्जाम में आया ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी, तो बी की फॉर्म भरनी थी, वो आज नहीं भर सकते क्योंकि ये आज भी है, पहले भी थी, हमेशा रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ कैन नेवर चेंज्ड, कैन नेवर बी चेंज्ड। सो जनरली दिस इज important in all exams. So we can find out the tense. Oftenly we find oftenly, generally, rarely, seldom, once a week, twice a week, always, daily, here, there, everywhere, God lives everywhere. Just like a example है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। इनको टेंस को सीखने के लिए हमें एक्शन को देखना होता है, वर्ब को देखना होता है। कुछ इसके डेफिनेशंस हैं, जो टाइम एडवर्ब है वो हमें बताती है एक्शन के बारे में। ऑफन जो है, ऑफनली है, ये टाइम एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, तो हमें प्रेजेंट के बारे में बताती है। जनरली है तो समझो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती है। डेली है ये भी, ऑलवेज है ये भी, ट्वाइस ए वीक है ये भी, हेयर देयर एवरीवेयर, ये सभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती है। तो बच्चों इसको सीखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपको टेंस आ जाएगा। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। Now, past, present continuous tense. Present continuous tense
present continuous tense called progressive tense. continuous को हम progressive tense भी बोलते हैं. जैसे मैं रास्ते में मिलता हूं, बच्चा पूछता है कि सर कहां जा रहे हो, गांव जा रहा हूं, घर जा रहा हूं. इस प्रोग्रेसिव है, वो बढ़ता ही चला जाएगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा. वो मिलता रहेगा, बात बताता रहेगा. ये टेंस कभी पूरा नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, इसलिए इसको कंटिन्यू बोलते हैं. इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, साथ साथ कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है. तो बच्चों परसेंट इंडेफिनिट का ही ये प्रोग्रेसिव टेंस है. परसेंट इंडेफिनिट का ही प्रोग्रेसिव टेंस है. जैसे he always speak the truth, but today he tell a lie. This is the text. और पूछता है इसको, कई बार फिलर हो दे देता है, फिलिंग द बैलेंस, खालिस्तान भरने के लिए दे देता है. कई बार ये टेंस पूछ लेता है. ऑलवेज आने से एस लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब. इसी का प्रोग्रेसिव, कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता. इसका प्रोग्रेसिव टेंस हमेशा कंटिन्यूअस टेंस ही होता है. हमेशा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग करना पड़ता है. तो ही इज टेलिंग, इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं. इसकी जो पहचान है, पहले में प्रेजेंट, फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरे में प्रोग्रेसिव टेंस होता है. इसकी हिंदी में हम पहचान बता सकते हैं. फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट और नेक्स्ट में कंटिन्यूअस. तो ये जैसे फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो नेक्स्ट इसकी ऑटोमेटिक प्रोग्रेसिव होगा. तो प्रोग्रेसिव में हम यूज क्या करते हैं, इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये बोला जाता है. ही, सी, इट, ये सिंगुलर कहलाते हैं. ये सिंगुलर है, इनके साथ इसका प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और आर के साथ, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है. इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं. इज, एम, आर विद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. इसमें जनरली बट टुडे एक पहचान है. या तो फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, दूसरी क्लॉज में कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस आता है, या इसमें बट टुडे आता है. कई बार दो क्लॉज होती है इसके अंदर, तो जो कनेक्शन है वो बट टुडे लगा होता है, उससे भी हम पहचान सकते हैं. लेकिन कई बार ये एग्जाम में आया, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट. द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट. बड़ा कंफ्यूजन है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है. तो बच्चों हम कैसे पहचानेंगे? डॉक्टर की हैबिट है मरीज को चेक करना, लेकिन हमेशा नहीं करता है, सोते समय नहीं करेगा. तो हमें क्या करना है कि जब हम डॉक्टर के पास गए और हमने उस विंडो में से देखा कि डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था, तो डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट. इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर
मरीज का निरीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारी जो मानसिक क्रिया है उससे मतलब है, उस पर डिपेंड कर रहा है, मानसिक क्रिया से। जैसे ही स्टैंडिंग, he is standing at the gate, at the main gate, main gate, वह मेन गेट पर खड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ, मेन गेट पे खड़ा है, लेकिन स्टैंडिंग होने की जो क्रिया है वो कंटिन्यू बताती है, कंटिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव बताती है, इसलिए इसके साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। ही इज स्टैंडिंग एट द मेन गेट, वह मेन गेट पर खड़ा है। जैसे मैंने कई बार हम पूछते हैं कि भाई राजू देखा कहीं, तो बोला राजू तो भाई जैसे स्कूल के सामने खड़ा है, वो तो वहां खड़ा है, मैंने अभी देखा है। तो हमारी मानसिक क्रिया, हमारी जो मन से जो जुड़ा है वो क्रिया काम करेगी। हमने आंखों से देखा है तो वो प्रोग्रेसिव होता है। तो उससे पता चला कि ही स्टैंडिंग एट द मेन गेट, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, इसका मतलब भी हमने देखा था। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बच्चों आपको पता है, परफेक्ट का मतलब कई बार काम करने वाला। कई बार कहते हैं कि वो फॉरवर्ड हो रहा है, वो बहुत मतलब वह कई बार इस काम को कर चुका है, बहुत फॉरवर्ड है वो। फॉरवर्ड मतलब परफेक्ट का उल्टा मीन्स परफेक्ट का बिगड़ा हुआ वर्ड है फॉरवर्ड, कि वो अपने काम में परफेक्ट है, कई बार काम को कर चुका है। जो काम पूरा हो जाता है उसे परफेक्ट बोलते हैं। कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जब काम कोई भी कार्य पूरा हो जाए उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और परफेक्ट टेंस में हमेशा जो यूज है, यूजेस है, वो क्या है, यूजेस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। हिंदी में है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई विल यू दे के साथ प्लूरल वर्ब और ही सीट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगल के साथ सिंगुलर बन गया, हैज का प्रयोग हो गया, और हैव प्लूरल वर्ब है, इसलिए प्लूरल वर्ब के मींस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो गया। कोई भी नाम है, वो सिंगुलर है, बट चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हैव का प्रयोग होगा। और जहां हैज आ जाता है वहां पर एक्शन कंप्लीट हो जाता है, और एक्शन कंप्लीट होता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है इसको, थर्ड फॉर्म को। यूजेस है ये, यूज हमें ग्रामर में यूज करना है हैज हैव थर्ड फॉर्म। बाय चांस आपको हैज हैव थर्ड फॉर्म मिल जाएगी तो समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में, सीपीओ का एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में जाता है, या कोई भी इस तरह का एग्जाम है, उसमें ये जनरली ग्रामर पूछी जाती है। वो इतनी नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसमें हमें पता चले कि सेंटेंस में हैज हैव थर्ड फॉर्म आया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। कई बार होता है उसमें जो पहचान है कि ये वर्ड्स आपको मिल जाए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा। बाय चांस ये पहचान है, पहचान का मतलब रिकॉग्नाइजेशन, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे टेंस को। पहचान मतलब आपको मिले एवर, आपको मिले नेवर, आपको मिले ऑलरेडी, एवर हो, नेवर हो, ऑलरेडी हो, रिसेंटली हो,
रिसेंटली हो या वंस, ट्वाइस, एक बार, दो बार, several times, several times, many times, several times, just, आदि हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे दे जस्ट अराइव्ड, जस्ट आने से मेरी पहचान है हैव अराइव्ड, दे हैव जस्ट अराइव्ड। हम इसको जस्ट को देख करके भी हम टेंस का पता लगा सकते हैं। तो टेंसेस और टेल अस अबाउट टाइम, टाइम के बारे में बताती हैं। जो टाइम एडवर्ब है, आप टाइम एडवर्ब को थोड़ा सा यूज टू रिटेन योर माइंड, अपने दिमाग में थोड़ा सा रिटेन करो कि कौन सी टाइम एडवर्ब कौन से एक्शन को बताती है। जो भी एक्शन घटता है वो टाइम एडवर्ब के अनुसार घटता है। कोई भी एक्शन है वो टाइम एडवर्ब के अनुसार घटता है। जैसे मैं पहले खाना खा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी eaten food, अब ऑलरेडी आने से पता चल गया ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको परफेक्ट कंप्लीशन ऑफ टेंस भी बोलते हैं, कंप्लीशन ऑफ एक्शन भी कहते हैं कि एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन पूरा हो जाता है। प्रेजेंट में शुरू होता है, कंटिन्यूस में लगातार चलता है और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पूरा हो जाता है। जैसे जाता है, फिर जा रहा है, अब जा चुका है। एक्शन वही है, यूजेज अलग अलग है। एक्शन जाने का ही है बट यूजेज अलग अलग है। टाइम एडवर्ब अलग अलग बात करती है, टाइम अलग अलग बता रहा है। तो दे हैव जस्ट अराइव्ड, आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। तो ये हमारी पहचान है कि एवर हो, नेवर हो, ऑलरेडी हो, रिसेंटली हो, वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, जस्ट आदि हो, मेनी टाइम्स भी आ जाता है कई बार। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हिंदी में बात करेंगे, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्रिया के अंत में चुका, चुकी है, चुके हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये अंग्रेजी में, क्योंकि देखो टेंस कोई भी इंग्लिश में जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश प्रोग्राम होता है, डायरेक्ट मेथड में यूज होता है, कभी भी ट्रांसलेशन मेथड यूज नहीं होता है। आपको टेंस पूछेगा तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि वो हिंदी में इंडिकेट करे कि ये कौन सा टेंस है, नहीं। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स ही यूज करने चाहिए कि एवर हो, नेवर हो, ऑलरेडी हो और रिसेंटली हो, वंस हो, ट्वाइस हो, सेवरल टाइम्स हो, जस्ट हो, तो ये जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये एग्जाम में एक सेंटेंस आया था एनडी में, हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या आप कभी मुंबई गए हो? एवर, EVER, एवर। एवर से पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या आप कभी मुंबई गए हो? तो ये हमारी पहचान है। एवर आए, नेवर आए, ऑलरेडी आए, रिसेंटली आए, वंस आए, ट्वाइस आए, सेवरल टाइम्स आए, जस्ट आए। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस हो गया। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसे थोड़ा रिपीट करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है, उसमें एक क्लॉज इंडेफिनिट पे होती है, नेक्स्ट उसी टेंस का प्रोग्रेसिव टेंस होता है, प्रोग्रेसिव क्लॉज होती है। या कई बार बट टुडे भी आ जाता है, या कई बार हमें मानसिक क्रिया से, मानसिकता से देखना होता है कि भाई ये टेंस कौन सा है। कई बार हम कहते हैं यहां क्यों खड़ा है, ट्रांसलेशन करें यहां क्यों खड़ा है, यहां क्यों खड़ा है, तो हम कहेंगे व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर। ऐसे नहीं व्हाई यू स्टैंड हेयर, नो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, आप यहां क्यों खड़े हो, क्योंकि आपकी जो खड़े होने की जो क्रिया है वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो यूजेस है वो हैज और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसकी पहचान है एवर हो, नेवर हो, ऑलरेडी हो, रिसेंटली हो, वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, या जस्ट आदि हो, तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, हिंदी में बात करते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। आप समझ गए हैं कि से क्या चीज है। से टाइम का बोध करा रहा है, ये से है, ये टाइम का बोध करा रहा है, हमें टाइम के बारे में बात कर रहा है। जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है, तो सुबह टाइम है, 3 मिनट से बच्चा रो रहा है, 3 मिनट भी टाइम है। मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं, तो से मतलब टाइम, तो ये टाइम का बोध करा रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म भी होगी, परफेक्ट थर्ड फॉर्म भी होगी, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म भी होगी। तो इसमें जो यूजेस होगा वो हमारा होगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ये हमारा हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग होगा। से रहा है मिसलेनियस टेंस है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट भी है इसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है। तो ये तीनों टेंस इसके अंदर मिसलेनियस है, इसलिए इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कि पहले एक्शन शुरू हुआ, फिर कंटिन्यू हुआ, फिर खत्म होकर के फिर कंटिन्यू हो गया। कि वह सुबह से टाइम दिया जाता है, इसमें टाइम इज गिवन, टाइम है सिंस और फॉर। इसकी जो पहचान है वो हमारे पास है सिंस और फॉर। हाउ लॉन्ग, सिंस फॉर हाउ लॉन्ग, ये हमारी पहचान है। सिंस फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, कब से, सिंस व्हेन, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से। एक बात और बताता हूं, निश्चित समय जिसको हम डेफिनेट टाइम बोलते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, वो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस आता है, इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इंडेफिनेट टाइम फॉर का प्रयोग होता है, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे 2 घंटे से, 30 मिनट से, 5 दिन से, ये पता नहीं कौन से 5 दिन, 4 बजे से। अब जब तक हम उसके एएम या पीएम नहीं लगाएंगे तो उसका टाइम नहीं बनेगा। तो 4 घंटे से, 2 घंटे से, ये सभी इंडेफिनिट टाइम है। 5 बजे से इंडेफिनिट टाइम है। इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर आता है और डेफिनिट टाइम के लिए सिंस आता है। ये प्रीपोजिशन भी है सिंस और फॉर। एक बार एग्जाम में आया कि सिंस और फॉर का यूज करना था,
जिन बच्चों को पता था कि डेफिनेट टाइम पता है उनको 5 बजे, सुबह के 5 बजे से डेफिनेट टाइम है, शाम के 5 बजे से डेफिनेट टाइम है, सुबह से डेफिनेट टाइम है। पिछले 2 सप्ताह से एनिसिड टाइम है, 10 मिनट से ये एनिसिड टाइम है, इसलिए उसमें फॉर का प्रयोग होना था। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से जांच करें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसकी जो पहचान है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको पहचानें। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। सिंस और फॉर आपको मिलता है, सिंस और फॉर के साथ समय दिया होता है, समय दिया हो, सिंस और फॉर के साथ समय दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। याद रखिए, कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये एक सिस्टम है हमारे पास। सबसे पहले पास्ट, कई बार कहते हैं अंडा आया या मुर्गी, कई बार पूछते हैं कि अंडा आया या मुर्गी, तो पास्ट की बातों को हम प्रेजेंट में पूछते हैं, प्रेजेंट में याद करते हैं पास्ट की बातों को, और फ्यूचर के लिए हम प्लान बनाते हैं। ये हमारा फंडा है। पास्ट की बात को पढ़ेंगे प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में पढ़ करके फ्यूचर की बात सोचेंगे। इसलिए फ्यूचर विल नेवर कम, फ्यूचर कभी भी आता नहीं है, फ्यूचर विल नेवर कम। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से का मतलब है टाइम, इसमें टाइम दिया जाता है, और इसकी जो पहचान है इंग्लिश में वो है सिंस और हाउ लॉन्ग। सिंस के साथ भी समय होगा, फॉर के साथ भी समय होगा, हाउ लॉन्ग के साथ भी समय होगा। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। और जिसका डेफिनेट ना निश्चित हो ना अनिश्चित हो, उसको कहते हैं कब से, उसके साथ हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यूजेस है हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद ing, ये इसमें प्रयोग होगा। जैसे द फार्मर हैज बीन प्लोइंग, प्लो मीन्स हल चलाना, प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। किसान सुबह से खेत में हल चला रहा है। अध्यापक 10 मिनट से पढ़ा रहा है। द टीचर हैज बीन, फॉर एग्जाम्पल द फार्मर हैज बीन प्लोइंग द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, अध्यापक 10 मिनट से पढ़ा रहा है। द बेबी हैज बीन वीपिंग सिंस 2 PM। बच्चा 2 बजे से, शाम के 2 बजे से, बच्चा शाम के 2 बजे से रो रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो ये था पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये सभी टेंस की समझो आत्मा है, और ये पूरा तीनों टेंस इसके अंदर शामिल है, मिले हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा है, से रहे, से रही हिंदी में पहचान है। सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग ये इंग्लिश में मिलता है आपको। यदि सिंस और फॉर, हाउ लॉन्ग के साथ समय दिया हो तो हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस तरीके से इसको हमें लर्न करना है। सबसे पहले टेंस का यूज करने से पहले, टेंस को लर्न करने से पहले, सीखने से पहले हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, एक पहचान और एक वर्ब यूज करना।
कि किस तरह से हम यूज करें इसको। ये गेट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो नेशनल लेवल का एग्जाम्स कोई भी है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, एचएससी, कोई भी एग्जाम है, सभी में ग्रामर पूछा जाता है। अंग्रेजी ग्रामर पे स्ट्रेस किया जाता है, फोकस किया जाता है कि ग्रामर का नॉलेज है या नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है, वर्ब, एक्शन और पहचान कि कौन सा टेंस हम कैसे पहचानें, उसकी पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलग पहचान है, कंटिन्यूअस टेंस की अलग पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की अलग पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलग पहचान है। इसमें अंग्रेजी में ही आपको सेंटेंस मिलेगा, हिंदी का कोई वर्ड, कोई लेटर लिखा नहीं होता है, सब इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचानने के लिए एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, जस्ट आदि मिलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानने के लिए आपको सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग मिलता है, जिसके साथ समय दिया होता है। और इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं। और ये जैसे सिंस मॉर्निंग लिखा है, ये हमारी पहचान है। ये 4:10 मिनट्स लिखा है, ये हमारी पहचान है। सिंस 2 PM लिखा है, ये हमारी पहचान है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।